Happy Engineers Day to all the engineers sitting in this room. But when it comes to comparison, it really hurts. You see, all professions are noble professions, and every profession requires certain human qualities which are common to every profession. He said 15th is the Engineers Day and 16th is not. I will say every minute, every second is an Engineers Day. If you scroll through the net, you will find all the countries celebrating Engineers Day on some other day. In India, of course, it is 15th of September, but in Slovakia it must be 16th of September. So it is never late and it is never lost. Always, अगर इंजीनियर बनना है तो पल पल को अपना इंजीनियर्स डे समझो and you will succeed in your life. हम लोग होली दिवाली मनाते हैं. क्यों एक दिन होली, क्यों एक दिन दिवाली? क्यों ना पल पल होली हो, पल पल दिवाली हो? Engineering, but engineering is one profession which deals with people only. You said you do not play with the life of the individuals. It is the engineers who are playing with the life of individuals. एक quotation को नेट से लेकर if we put it in our presentation and without giving a thought, we present it before everyone, it may not be good for our health. Why engineers are not playing with the life of individuals? You have constructed a bridge, it falls down. Are you not playing with the life of the individuals? You have constructed a metro, it may fall down. Is it not the engineer's fault? So, as the doctors are playing with the life to save lives, similarly an engineer's profession is also to save life and to make our lives better. The qualities of an engineer, if I start with the word E itself, the first E means energetic. An engineer needs to be energetic, and that is what the message we get from the life of Vishwaraya. He continued to work with full energy up to the age of 101. And we at the age of 21 and 31 are always tired. किसी को बुलाओ भागा आएगा पसीने पहुंचता. अरे अगर लाइफ में एनर्जी नहीं रखेंगे, लाइफ में अपनी एनर्जी को फुल्ली मेंटेन्ड नहीं रखेंगे, तो हम इंजीनियर क्या किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते. जॉर्ज वाशिंगटन की मेमोरी में ही अमेरिका में इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. और जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में ये कहते हैं कि एक दिन कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि कुछ लोग, कुछ लेबरर्स एक लकड़ी का मोट, व्हाट इज कॉल्ड एज बैटरिंग रैम, ताकि उससे दीवार को तोड़ते थे. लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े पकड़ के उठा के दीवार में मारते थे, उसको तोड़ने का काम करते. उनका जो लेफ्टिनेंट था वो उनको ऑर्डर्स दे रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, परंतु वो लकड़ी का जो मुड़, जो स्लीपर था, वो उठा नहीं जा रहा था. जॉर्ज वाशिंगटन घोड़े से उतरा, उस लकड़ी के स्लीपर को उठवाया, फिर घोड़े पर बैठा और फिर उस लेफ्टिनेंट के पास गया और उसे कहा कि दोबारा यदि तुम्हें किसी लेबरर की आवश्यकता हो तो अपने सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को याद कर लेना. This is the message he wanted to give.
that you have to be like, if I am a lieutenant, my only job is not to be an onlooker, कि मैं खड़ा दूसरों को orders देता जाऊँ. I have to be a part of the team. I cannot be apart the team. So my message to you all is that whenever the work is going on, please be a part of that work. Your subject is what you are doing. So channelize your energy, utilize your energy, so that by your energy, the students can be benefited, the institution can be benefited. Then comes the end. कोई भी profession हम choose करें, nobility is the first quality we need to have. Usually people come to me कि सर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सर उसने मेरा सत्यानाश कर दिया. अरे ना कोई किसी का सत्यानाश करता है, ना कोई करने वाला. एक महात्मा थे, उन्होंने एक बिच्छू को डूबते देखा. उन्होंने उसे नदी से निकाला. बिच्छू ने महात्मा को काटा, परंतु महात्मा ने उसे किनारे पर रख दिया. थोड़ी देर में वो फिर बिच्छू पानी में चला गया. महात्मा ने फिर निकाला, फिर उस बिच्छू ने महात्मा को काटा. महात्मा ने फिर भी उसे सुरक्षित स्थान पर रखा, परंतु वो फिर अपने स्वभाव से पानी में गया. ऐसा कई बार होता है. तो किसी पास खड़े और मैंने पूछा कि महाराज आपको ये बिच्छू बार बार काटता है, फिर भी आप इस बिच्छू को सुरक्षित स्थान पर निकालते हैं. तो उस महात्मा ने मालूम क्या कहा? उस महात्मा ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना. अपने बचाने के स्वभाव को, अपने अच्छे स्वभाव को इसके बुरे स्वभाव पर कुर्बान नहीं कर सकते. इट कैरीज ए मैसेज फॉर यू. अपनी अच्छाइयों को दूसरे की बुराइयों पर कुर्बान मत करो. अपनी अच्छाइयों को अपने साथ रखो और दूसरों के अंदर भी गुणों को देखने की चेष्टा करो. Life will become much more easier for you. G stands for going all out. Go all out for whatever you desire in your life. Whatever you want to do it with all your might. And if you can do that, if you can work with all the focus, all the concentration, all the determination, और जब हम एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि हमारा ध्यान कैंटीन में हो, यदि हमारा ध्यान आई हॉस्पिटल की तरफ लगा रहे, यदि हमारा ध्यान एक दूसरे की तरफ लगा रहे, तो ये जो डिस्ट्रैक्टर्स है ना, ये हमें ऑल आउट नहीं जाने देते. ऑल आउट हम तभी जाते हैं जब हम बिल्कुल मछली की आंख की तरह अपने आप को अर्जुन. कहते हैं एक महात्मा पूजा में लीन थे. इतने में कोई एक अर्धनग्न औरत आई और वहां से गुजरी, तो उसने महात्मा की कोई जो हवन की लकड़ियां होंगी उन पर टांग लग गई. उसको महात्मा का ध्यान भटका, महात्मा पीछे पीछे भागा उसको गालियां देने के लिए, और फिर कहा कि एक तो तूने मेरी पूजा को भंग किया, दूसरा तू अर्धनग्न होकर घूम रही है. तो वो औरत वहां रुकी और उसने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मैं तो अपने मजनू के प्यार में पागल हूं.
और जब मुझे कहीं से मजनू की आवाज आई तो मैं इस ध्यान से भागी कि मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने क्या कपड़े डाले और रास्ते में किसको ठोकर मारी। परंतु आप कैसे भगवान के पीछे हो, आप कैसे भगवान को याद करते हो कि जिस भगवान की पूजा में आपका मेरी जरा सी ठोकर से, मेरे जरा से पहनावे से ध्यान बना। यानी even in the physical world this lady was going all out, but even in the spiritual world that saint was not going all out. So that is our basic need, that we must do everything with all our focus, with all our might, with all our determination, with all our dedication, with all our faith. And if we can do that, believe me, there is nothing impossible in this world. I stands for innovation. It is different from, slightly different from invention and improvement. But हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। यदि हम लकीर की फकीरी पर चलेंगे, यदि हम तोतागिरी पर चलेंगे, तो हम कभी अच्छे इंजीनियर्स या डॉक्टर्स नहीं बन सकते। Innovation is the buzzword. Try something new, do something new, work on some new idea. भगवान राम ने भी नई नई इनोवेशंस की थी, इसीलिए भगवान कहते हैं जब शबरी से मिलने गए तो सारे साधु संत महात्मा तो इंतजार करते रहे, परंतु वो शबरी के आश्रम में गए, क्योंकि शबरी रोज रास्ते को साफ करती थी, पूरी इंतजार करती। She had a strong desire कि राम उसके यहाँ पे आए, और राम उसके यहाँ पर आए। जब राम उसके यहाँ पर आ गए तो साधु संत महात्मा भी लेने आए कि हमारी भी कुटिया में चलो। उन्होंने कहा जरूर चलो। थोड़ा सा आगे चले तो रास्ते में एक तालाब था, गंदा तालाब, कीड़े मकोड़े मक्खियाँ पता नहीं क्या क्या उसमें। साधु संतों ने राम जी से कहा कि राम जी आप इसमें चरण डाल दें अपने, तो ये पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। रामचंद्र जी ने कहा कि मेरे पैर डालने से तो ये स्वच्छ और निर्मल नहीं होगा, परंतु यदि तुम उस भीलनी को बुला लाओ, उस शबरी को बुला लाओ और उसके चरण यहाँ डलवा लो, तो ये पानी स्वच्छ और निर्मल होगा। अब वो साधु संत सब क्रोधित हुए, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स, कि भीलनी के पांव का छुआ हुआ पानी वो लोग ग्रहण करें, ये उन्हें गवारा नहीं था। But Ram wanted an innovation. He wanted to give a new idea to the society, a new message to the society. उन्होंने स्वयं डाल करके शबरी के हाथों, शबरी के पांव उस तालाब में डलवाए। He broke all the shackles, all the impediments, all the traditions, and still उन्होंने शबरी को बुलाया और शबरी के पांव उस पानी में जैसे ही गए, उस तालाब का पानी स्वच्छ और निर्मल। चाहते तो राम भी ऐसे का ऐसे कर सकते, भगवान थे, परंतु उन्होंने कुछ इनोवेशन किया कि क्यों ना शबरी के माध्यम से एक संदेश दिया जाए इस समाज में। का मतलब यदि मैं कहूँ तो आई विल ऑलवेज से नेवर सेटल फॉर लेस। अपनी लाइफ में कभी भी नेवर सेटल फॉर लेस। और यदि आप अपने जीवन का ये ध्येय बना लोगे कि मैंने किसी छोटी मोटी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता, तो अपने आप ग्रेट बन जाओगे, है ना। ग्रेटनेस विल ऑटोमेटिकली कम टू यू इफ यू डिसाइड दैट आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। चातक देखा तुमने? चातक, एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और उसने कहा गुरुजी आज आखिरी उपदेश दे दो। उसने कहा आखिरी उपदेश देने के काबिल मैं नहीं, तू एक काम कर, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के पास एक तालाब मिलेगा, वहाँ पर तेरे को एक और गुरु मिलेगा जो तुझे आखिरी उपदेश दे।
अब वो व्यक्ति उस स्थान पर, बताए हुए स्थान पर गया और जाकर उसने देखा कि यहाँ तो एक सूखा सा पेड़ है, नीचे झील है और उस पेड़ पर एक झुलसी सी, एक मरी सी चिड़िया बैठी। अब उसने सोचा कि गुरु ने कैसे स्थान पर भेजा जहाँ पे एक झुलसी चिड़िया या झुलसी कोई ऐसा पक्षी के अलावा कुछ है नहीं। उसको लगा कि ये पक्षी प्यासा है। उसने झील से पानी भरा और उस चिड़िया की चोंच तक ले गया। चिड़िया ने पानी नहीं पिया। प्यासी होने के बावजूद भी चिड़िया ने पानी नहीं पिया। और जब उस शिष्य ने उस चिड़िया से पूछा कि तू प्यासी मर रही है, झील तेरे नीचे है, मैं बुक्कल में पानी लेकर आया और फिर भी तू पानी नहीं पिया। तो उस चिड़िया ने कहा कि मेरे जीवन का ध्येय है कि जो आसमान से पहली बूंद गिरेगी मैं उससे अपनी प्यास बुझाऊंगी, अन्यथा कोई जल मेरी प्यास बुझा नहीं सकता। जब एक पक्षी decides that he or she is not going to settle for less, we are human beings. Why should we settle for less? And engineers should never settle for less. And if you will settle for less, there will be no new inventions in this world. ये इम्प्रोवाइजेशन की इच्छा है कि जो व्यक्ति को पूर्णता तक लेके जाता है। अन्यथा फोर्ड ने जब गाड़ी बनाई तो उसमें बैक गियर लगाना ही भूल गया। अगर वो उसे पूर्ण कार्य समझ लेता तो शायद जो फोर्ड गाड़ियां आज हमें मिलती हैं वैसी नहीं मिलती। बट उसने डिसाइड किया, गलती को महसूस किया और फिर आगे की इम्प्रूवमेंट करनी शुरू की। नेक्स्ट ई मीन्स फॉलो एडिसन्स प्रिंसिपल। एडिसन्स प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड in the life of every engineer or a scientist। अब एडिसन का प्रिंसिपल क्या है? एडिसन का प्रिंसिपल है कि यदि हम अपने जीवन में अपने काम के स्थान को सबसे बड़ा पूजा का स्थान, सबसे बड़ा घूमने का स्थान ना बनाए तो शायद हम अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर सकते। सारा दिन लैब में लगा रहता। एक दिन बीवी ने कहा बहुत थक गए, कपड़े भी फटे हाल हैं, दाढ़ी भी बढ़ गई है, बाल भी बिखरे हुए हैं, चलो कहीं घुमा लाते हैं, कल चलते हैं घूमने, छुट्टियां मनाने 5-7 दिन। तो एडिसन की वाइफ ने उसे कहा कि कल 5-7 दिन के लिए छुट्टियां मनाने चलते हैं। तो एडिसन ने कहा बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरी कंडीशन है कि चलेंगे हम वहाँ जो मेरी सबसे प्यारी जगह होगी, जो मेरी सबसे आकर्षक जगह होगी, जो मेरे लिए सबसे सुंदर जगह होगी। दे ऑर्डर्ड फॉर ए टैक्सी इन द मॉर्निंग। अगले दिन टैक्सी आ गई। जब दोनों जने बैठ गए अपना सामान पैक करके, तो टैक्सी वाले ने पूछा कहाँ चले साहब? तो एडिसन ने कहा कि टेक मी टू माई लेबोरेटरी। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एडिसन हैड कि घूमने भी जाना तो अपनी लेबोरेटरी में, सबसे अच्छी कोई चीज लगती है तो वो भी लेबोरेटरी, सबसे कोई आकर्षक चीज लगती है तो वो भी लेबोरेटरी, सबसे कोई मनमोहक चीज लगती है तो वो भी लेबोरेटरी। So that kind of attitude we must follow in our life. Those who have been scientists, they have taught us a lot, not only by their experiments or inventions or discoveries, but also by their life. There is much to learn from the life of these individuals in whose memory we celebrate Engineers Days. I will say riveting gratitude. Rivet समझ दो, rivet. What is rivet? जिसे हम आम भाषा में रिपट कह देते हैं। इट इज एक्चुअली रिवेट। रिवेटिंग ग्रेटिट्यूड मीन्स व्हाट?
कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ करवाने वाला है परमात्मा। मोर्स का नाम सुना आपने? मोर्स, ही वॉज ए पेंटर एंड लेटर बिकेम ए फिजिसिस्ट। उसने कहा कि जब जब मैंने प्रयोग किए, जब जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और जब जब मुझे उत्तर नहीं मिला बाहर के संसार से, तो मुझे उत्तर मिला मेरे अंदर के संसार से। अंतर्दृष्टि से मुझे वो जवाब मिले जो ये भौतिक संसार मुझे जवाब नहीं दे पाया। और जो पहला उसने टेलीग्राफिक मैसेज कन्वे किया, उस मैसेज में ये लिखा था, आहा भगवान तेरी सृष्टि कितनी सुंदर है। दिस वॉज द फर्स्ट मैसेज सेंट थ्रू दैट कोडिंग ऑफ मोर्स की, बिकॉज he believed in God. He said ये इन्वेंशन और डिस्कवरीज तो होनी ही है, परंतु मेरा सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे माध्यम चुना इन इन्वेंशन और डिस्कवरीज के। हम और आप कुछ नहीं है, हम और आप केवल और केवल एक माध्यम है उस परमात्मा का, एक कठपुतली है उस परमात्मा के हाथों की, कि जितनी वो चाबी भरेगा उतना ही ये खिलौना चलेगा। और यदि हम अपने आप को माध्यम समझ के काम करेंगे, तो जो ई बीच में छूट गया, ईगोलेस, तो तब हम ईगोलेस होकर जब काम करेंगे, अहंकार रहित होकर काम करेंगे, अपने काम को परमात्मा को समर्पित करेंगे और अपने आप को केवल और केवल एक माध्यम मानेंगे, उस दिन हम एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। और कौन जानता है कि इस हॉल में बैठे व्यक्ति के नाम से ही आने वाली जनरेशंस को इंजीनियर्स डे बनाए। You never know, but if certainly we have the human qualities and we have the human aspect and we do not forget humanity while working, we certainly can become engineers, and that will be the idea of celebrating Engineers Day. Engineers Day is not about celebrating and eating laddus. Engineers Day is all about what Dr. Vishwaraiya gave the message to the engineering fraternity. And whatever qualities I have narrated, time was short, otherwise I could have narrated with the life of Dr. Vishwaraiya also, because he was such a legendary figure and he was pioneer in so many activities, and still the life was the simplest life, was the most honest life one could ever. So my all regards and homage to Dr. Vishwaraiya, in whose memory we celebrate Engineers Day in India, and my congratulations to all the engineers. But at the same time, I will like that you people work hard and hard and hard. Take this pledge today. Have a determination today that in days to come, we will change our engineering college and change to the extent that people envy it. Thank you very much.